Welcome in class 9 mathematics number system part 2. In the last video, means in part 1, we have discussed about rational and irrational numbers. As discussed in the first video, any number, whatever your number may be, can be expressed as a decimal. कोई भी नंबर हो उसको आप डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं. एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेसिमल नंबर: टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल and non-terminating non-repeating decimal. These are the 3 categories of decimal numbers. First category terminating decimal, and second non-terminating repeating. These 2 types of decimal numbers are called rational numbers, and the third category non-terminating non-repeating are called irrational numbers. Okay, terminating and non-terminating repeating are together called rational numbers, and non-terminating non-repeating decimal numbers are called irrational numbers. And rational and irrationals, all rational numbers and all irrational numbers are combinedly called real numbers. Real number means it may be rational, it may be irrational. So these things we have discussed in part 1. In this part, we especially discussed how to represent rational number on the number line. Rational number को number line में कैसे दिखाएंगे? How to represent irrational number also on the number line. These 2 things we try to discuss in this video. Also, we try to represent square root of a number on a number line. So these things we understand by using some example. That will be better. So let us see what we are going to discuss in this part. First of all, we see represent some rational and some irrationals on the number line. First of all, represent, take some irrational numbers. कुछ irrational number लीजिए, like √2, √3, √5, है ना? These are the 3 irrational. Let us take some rational. कुछ rational number ले लीजिए, जैसे 2:1/3 is a rational number. आप ले लीजिए 1.7 इज ए रैशनल नंबर. ओके, आप ले लीजिए 2.57 इज ए रैशनल नंबर. चलिए इतना. जैसे आफ्टर डेसिमल एज वी रिप्रेजेंट 2 digit, सिमिलरली वी कैन रिप्रेजेंट 3 digits ऑल्सो. सो रिप्रेजेंट दीज नंबर्स on the number line. Number line, you know what is number line. It is from class 6 onward, number line. So you have to represent these on the number line. Number line में दिखाएंगे कि ये सब कहाँ है, कैसे है. ठीक है. Secondly, आप नोट कर लीजिए, represent कोई भी नंबर है x में भी एनी नंबर, इसका रूट x, रिप्रेजेंट √x ऑन द नंबर लाइन. ये अलग से पढ़ेंगे. नंबर लाइन ऑल्सो, इसको पढ़ने के बाद ऑल्सो रिप्रेजेंट, जैसे √x का आप पढ़ लेंगे तो रूट जैसे 9.2, ये आपके टेक्स्ट बुक में है ये क्वेश्चन. रिप्रेजेंट 9.2
ऑन द नंबर लाइन। ये क्वेश्चन तो बुक में है, रिप्रेजेंट 9.2 ऑन द नंबर लाइन। रूट एक्स का पहले सीखेंगे, ये जनरल होगा, हमारा थ्योरी होगा कि रूट एक्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब रूट 9.1 हो, रूट 6 हो, रूट 5.2 हो, सबको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकेंगे। थर्ड, राइट टू रैशनल एंड टू irrational numbers between 5/7 and 9/11। ये भी आपके टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन है। राइट टू रैशनल एंड टू irrational numbers between 5/7 and 9/11। इतना चीज़ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। पेशेंसली आप वीडियो को देखिएगा, थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन इतना सारा चीज़ है जिसको कंप्लीट करेंगे एक एक करके, ठीक है। तो आप नोट कर सकते हैं कि ये चीज़ हमको इस वीडियो में करना है। तो चलिए सबसे पहले इस पर आते हैं। लेट अस रिप्रेजेंट √2, √3, √5 ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन किसको बोलते हैं? ऐसे आपका 0, 1, 2 इक्वल डिस्टेंसेस पर 1, 2, 3 करके ये चलेगा टिल इन्फिनिटी। एंड दिस साइड बैकवर्ड -1, -2 एंड सो ऑन। तो दिस इज कॉल्ड नंबर लाइन। इस नंबर लाइन में आपको बताना है कि √2 कहाँ होगा। ये 0 है, ये 1 है, यहाँ इक्वल डिस्टेंस पर यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, √2 कहाँ होगा ये आपको बताना है। समझ रहे हैं बात? तो देखिए √2 के लिए ये आपका 0 है, ये 1 है। एट पॉइंट 1 वी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर। ये 1 पॉइंट पर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे। कैसे? बहुत तरीका है। एक आप कंपास ले लीजिए, कंपास समझते हैं। कंपास लेके इस पॉइंट पर ये यहाँ आप 90 डिग्री का एंगल बना सकते हैं। वो क्लास 5-7 में बनाए हैं ना, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, इस तरह का आप एंगल बनाए हैं ना 5-6 स्टैंडर्ड में। तो यहाँ पर कंपास रख के ऐसे काट देंगे। एक बार काटने से 60 होता है, फिर 120 होता है, फिर 60 और 120 को बाइसेक्ट करेंगे तो 90 आएगा, उसको बना के बढ़ा देंगे। एक तरीका है आपका 90 डिग्री बनाने का। दूसरा ऐसे भी कर सकते हैं, प्रोटेक्टर समझते हैं। प्रोटेक्टर को यहाँ बैठा दीजिए, मिडिल यहाँ रख दीजिए और 90 डिग्री पर एक पॉइंट लगा दीजिए। 90 पर एक पॉइंट लगा के सीधा ऊपर खींच दीजिए ऐसा लाइन, तो 90 डिग्री हो जाएगा सीधा, ठीक है। तो इन दिस वे यू कैन ड्रॉ 90 डिग्री एट 1, ठीक है। अब कंपास को यहाँ रखिएगा 0 पर और पेंसिल को ले जाइएगा यहाँ तक। कंपास को यहाँ रखना है और पेंसिल को यहाँ तक ले आना है, ऐसे इतना। तो ये आपका 1 यूनिट होगा। अब फिर कंपास को यहाँ रखिएगा, कंपास का पॉइंट को, और 1 यूनिट जो आप नापे हैं ना उसको ऐसे करके काट दीजिएगा। कटेगा ना, इतना डिस्टेंस इधर रख के ऐसे काट दीजिएगा, ठीक है। जहाँ कटा इस पॉइंट को इससे मिला दीजिएगा, ठीक है। ये डिस्टेंस आपका 1 यूनिट है और इसी के बराबर यहाँ से कट कर लिए आप। दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो 1 यूनिट। ये 1, ये तो राइट एंगल है, ये हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस होगा √1² + 1²।
मतलब ये हाइपोटेनस आपका रिप्रेजेंट करेगा √2 को। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो दिस स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दिस इक्वल टू √2, रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो √2 हो जाएगा। ठीक है, फिर तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये आपका हुआ √2। ठीक, अब कंपास को आप यहाँ रखिएगा, कंपास का जो पॉइंट है, और उसका जो पेंसिल है ना उसको खींच के यहाँ तक ले आइएगा, यहाँ तक, यानी ये डिस्टेंस तो मेजर करना है, ऐसे करके कर सकते हैं। कंपास को यहाँ रखिएगा, पेंसिल यहाँ आ जाएगा, तो ये डिस्टेंस आपको क्या बताएगा, √2। और उसके बाद कंपास यहाँ है ना, कंपास को ऐसे करके ऐसे काट दीजिएगा, अरे कंपास है ना, इसको ऐसे करके पेंसिल को ऐसे काट दीजिएगा। नंबर लाइन में जहाँ कटा ये जो पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट हुआ, ये रिप्रेजेंट करेगा √2 को। आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड हाउ टू रिप्रेजेंट √2 ऑन द नंबर लाइन। समझ गया, ये जहाँ भी कटेगा वो पॉइंट √2 को रिप्रेजेंट करेगा नंबर लाइन में। समझ गया बात। अच्छा, फिर √3 को कैसे करेंगे, देखिए ये है, मान लीजिए 0, ये है 1, ये है 2, और ज़्यादा का ज़रूरत नहीं है हमको। अच्छा, जैसे √2 आ गया, कहाँ आया, यहाँ पर इसके बीच में है ना, ये पॉइंट आपका आ गया √2 हमको मिल गया कि कहाँ है √2 के बाद अब √3 रिप्रेजेंट करेंगे। √3 के लिए पहले आपको √2 चाहिए, बात समझे, तो √2 मिल गया। अब ये जो √2 वाला पॉइंट है ना, यहाँ पर आप एक परपेंडिकुलर खींच लीजिए, वैसे जैसे आप परपेंडिकुलर खींचते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ कंपास को रखिए, देखिए ये 0 पर, और ये 1 यूनिट 0 से लेके 1 तक, ये जो 1 यूनिट यहाँ पेंसिल रखेगा, 1 यूनिट आप नाप लीजिएगा। 1 यूनिट नाप के कंपास को यहाँ रखिएगा, और इधर आपका 1 यूनिट ऐसे करके काट दीजिएगा, यहाँ रख के ऐसा। तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है, ये आपका √2 है, यहाँ तक ये डिस्टेंस आपका √2 है, और ये डिस्टेंस कितना है, 1। अब इसको मिला दीजिए यहाँ से, तो ये वाला कितना होगा, ये होगा आपका रूट अंडर, ये डिस्टेंस है आपका √2, तो √2 का स्क्वायर प्लस ये 1 है, 1 स्क्वायर, तो ये 2 स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1, मैंने ये आपका हो जाएगा √3। ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका हो जाएगा √3। समझ गए। अब आप कंपास को यहाँ ले आइएगा और पेंसिल को यहाँ, तो ये पूरा डिस्टेंस आपका √3 हो जाएगा, और √3 ऐसे करके आप काट दीजिएगा। यहाँ कंपास, यहाँ पेंसिल ऐसे काटिएगा, जहाँ कटेगा ये जो पॉइंट है ये आपका हो जाएगा √3। दिस पॉइंट will represent the number √3. So I hope you have understand how to represent √2 and √3 on the number line. ठीक है, अब √5 कैसे करेंगे, देखिए 2 स्क्वायर 4 और 1 स्क्वायर 1, तो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का रूट होने से √5 आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक आपका 2 है, आप यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ले लेंगे ऐसे, बात समझ गए, 2 पर एक परपेंडिकुलर ले लीजिए, और 1 यूनिट, ये जो 0 से लेके 1 तक 1 यूनिट आप फिर से नाप लीजिएगा, और कंपास को यहाँ रख के इस तरह से 1 यूनिट, ये 1 यूनिट होगा, 1 यूनिट आप कट कर लीजिएगा। तो ये डिस्टेंस आपका 2 है, ये डिस्टेंस 1 है। अब इसको अगर मिलाइएगा 0 से ये वाला, तो ये डिस्टेंस आपका हो जाएगा रूट अंडर, ये 2 है ना, तो 2 स्क्वायर प्लस ये हाइट 1 है, 1 स्क्वायर, मतलब
√5 हो जाएगा। कौन? ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक 2 है, यहाँ से यहाँ तक 1 है, तो हाइपोटेनस होगा √2² + 1² √5। देन यू विल पुट योर कंपास हियर, यहाँ कंपास रखिएगा और पेंसिल को यहाँ तक ले आइएगा खींच के ऐसे, तो ये आपका √5 होगा। और कंपास को ऐसे करके ऐसे काट दीजिएगा नंबर लाइन में, जहाँ कटेगा ये पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है वो पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा √5 को। समझ गए? इन दिस वे वी कैन रिप्रेजेंट √2, √3, √5 ऑन द नंबर लाइन। √7 कैसे होगा? अपने से थोड़ा दिमाग लगाइए, √7 कैसे होगा? देखिए, √3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का रूट करेंगे तो √7 आएगा ना, ऐसा। तो आपको एक √3 लेना है और 2 यूनिट लेके कट कर लेना है, उसका जो हाइपोटेनस आएगा वो √7 होगा। देखिए, ये √3 कहाँ है? यहाँ है ना √3, ये पॉइंट था ना √3, ये √3 पर एक परपेंडिकुलर खींचेगा। आप इसको थोड़ा मिटाते हैं, आप समझ लीजिए √7 भी, √7 यहाँ नहीं लिखे हैं, फिर भी ज़रूरत पड़े तो आप √7 भी बना सकते हैं। आप देख लीजिए, देखिए √7 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप। ये आपका 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। आप √3 तो निकाल सकते हैं, पहले आपको √3 निकालना पड़ेगा। मान लीजिए ये पॉइंट आपका √3 है, ऐसे, जैसे ये 1 और 2 के बीच में ही आता है √3, √2 √3 दोनों 1 और 2 के बीच में ही आएगा। अब ये √3 पॉइंट जहाँ आपको मिला है, यहाँ आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। कंपास को यहाँ रखना है 0 पर और 0 से खींच के यहाँ तक ले आना है 2 तक, 0 to 2 माना 2 यूनिट का, और 2 यूनिट का लेके यहाँ कंपास को रख के इधर ऐसे काट लेना है, इधर 2 यूनिट कट कर लेना है, ठीक है। ये डिस्टेंस है आपका √3, ये है 2, तो ये हाइपोटेनस कितना होगा? √3² + 2² यानी 3 + 4 7, तो ये आपका होगा √7 ऐसे। अब यहाँ कंपास को रखिएगा, पेंसिल को यहाँ तक ले जाइएगा, ये √7 होगा और √7 लेके ऐसे करके घुमा दीजिएगा, जहाँ कटेगा ये जो आपका पॉइंट हुआ ये रिप्रेजेंट करेगा आपको √7। तो इन दिस वे वी कैन रिप्रेजेंट √2, √3, √5 ऑन द नंबर लाइन, ठीक है, बात समझे? चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग कि ये तो इरेशनल नंबर्स था, कुछ इरेशनल नंबर को आपको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करके बताए। अब कुछ रैशनल को रिप्रेजेंट करते हैं, 2:1/3, 1.7, 2.75, ये सबको अगर नंबर लाइन में दिखाना है तब क्या करेंगे? चलिए देखते हैं, इसको मिटा देते हैं कंप्लीट। थोड़ा पेशेंसली देखिए, सारा चीज़ इसमें डिस्कस कर देंगे। लगभग ये फर्स्ट चैप्टर का सारा थ्योरी ये 2 वीडियो में ही हो जाएगा। प्रॉब्लम भी हर तरह का आप समझ जाइएगा, सिर्फ एक्सरसाइज का प्रॉब्लम सॉल्व करना बाकी रहेगा, ठीक है। मतलब लाइन बाय लाइन एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज, ये सब एक्सरसाइज का ही प्रॉब्लम है, ये सब भी एक्सरसाइज में है, ये भी एक्सरसाइज में है, ये भी एक्सरसाइज में है ना। मेन हर एक टाइप का प्रॉब्लम आपका हो जाएगा इस वीडियो में। कुछ जो आसान कुछ और सवाल होगा एक्सरसाइज का प्रॉब्लम में, उसको आप बुक लेकर के एक एक करके कीजिएगा। अदरवाइज वीडियो में जितना हम बता दे रहे हैं, जितना सम बना दे रहे हैं,
आप इसका एक नोट कॉपी बनाइए और सारा को बढ़िया से एक नोट कॉपी में बना के रखिए। इतना प्रैक्टिस कीजिए, आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 2:1/3। चलिए नंबर लाइन चाहिए फिर। ये है नंबर लाइन। नंबर लाइन मतलब 0 रहेगा, 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, आगे जहाँ ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, देखिए 2:1/3 यहाँ पर देखिए 2:1/3 का मतलब होता है 2 and 1/3। 3 है 2 and 1/3 यानी 2 और फिर 1/3, 2 फिर 1/3। तो 2 तो यहाँ तक हो गया, उसके बाद और 1/3 चाहिए। ये 1/3 का मतलब 1 out of 3। नेक्स्ट जो एक यूनिट है ना उसका 1/3 माने 3 भाग का 1 भाग, 3 पार्ट का 1 पार्ट, 1 पार्ट आउट ऑफ 3। ये 2 हो गया, ये 2 to 3 ये जो 1 यूनिट है ना इसका 1/3 चाहिए। सो वी डिवाइड दिस इनटू 3 इक्वल पार्ट। ये जो 2 से 3 तक है ना इसको हम लोग 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। जैसे 1 2 और ये 3 हो गया। 1 2 3 इक्वल पार्ट में अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये 2 है, ये वाला कितना होगा, ये वाला पॉइंट ये है 2 और ये 3 पार्ट था ना, 3 में से 1 है ना तो ये 1/3 है। समझ रहे बात? ये 3 1/3 है। ये पॉइंट कितना है ये भी आप जानिए, 2 है, 2 और 2 आउट ऑफ 3 तो 2:2/3 ये है आपका ये पॉइंट। तो इस तरह से 2:1/3 आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। 1.7 का क्या मतलब है? 0 थोड़ा बड़ा बड़ा लेते हैं, आपको देखने में सुविधा होगा। 1 है फिर 2 होगा, आपको 1.7। अच्छा 1.7 तो 1 के आगे ही जाएगा ये, तो थोड़ा आगे चलिए। पहले यहाँ तक 2 है, ये 3 है, 4 है। 1.7 मीन्स 1 and 0.7। 1.7 का मतलब होता है 1 plus 0.7। 1 plus 0.7 मीन्स 1 plus 0.7 मीन्स 7/10 है वो, माने एक पूरा लेना है। उसके बाद जो एक यूनिट मिलेगा उसका 10 में से 7 लेना है, 7th आउट ऑफ 10 तो हो जाएगा 1.7। ठीक है, तो 1 यहाँ तक हो गया। अब ये जो पार्ट है ना इसका 7 पार्ट लेना है आउट ऑफ 10, तो इसको हम लोग 10 पार्ट में अगर बांट दें 1 2 3 4 5 6 10 में बांटना है। थोड़ा ये ज़्यादा डिस्टेंस हो गया। ये यहाँ तक आपका 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए टोटल 10 पार्ट हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट हो गया। तो 10 पार्ट में से कितना लेंगे? 7, 5 6 7। ये पॉइंट जो है ये आपका रिप्रेजेंट करेगा 1 और 7 आउट ऑफ 10 मीन्स 1.7। ये क्या होगा? ये वाला ये होगा 1.8, ये होगा 1.9, ये होगा 1.5, ये कितना होगा बोलिए? 1.2। इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, 2.75। Try to understand how to represent 2.75 on the number line.
2.75 मैंने 2 से आगे ही जाएगा, इधर वाला नहीं लेते, इधर का तो हमको ज़रूरत नहीं है। यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया 2, हो गया 3, बस आगे का ज़रूरत नहीं है। 2.75 इसी के बीच में आएगा। देखिए आपको चाहिए 57 है, 75 नहीं, 2.57। तो ये 2.57 2.5 से बड़ा होगा, आगे और 7 है, और ये ज़रूर 2.6 से छोटा होगा। नहीं, 2.6 से तो छोटा है ना, 2.5 से बड़ा है। तो आप पहले 2.5 देखिए कहाँ है, फिर 2.6 देखेंगे, फिर उसके बीच में होगा ये 2.57, उसको निकालेंगे अगर 2 डिजिट है तो। समझ गए बात? 2.5 कहाँ होगा? 2 और ये 2.5 का मतलब होता है 2 और फिर 0.5, 0.5 मीन्स 5 आउट ऑफ 10। समझ गए बात? तो ये 2 हो गया। अब ये 2 से 3 जो है इसको 10 पार्ट में बांटेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10। तो 10 में से 5 मतलब ये वाला, ये आपका हो गया 2.5। और 2.6 कौन सा हो गया इसके बाद वाला? ये हो गया आपका 2.6। ये हो गया 2.5, ये हो गया 2.6, और आपका ये 2.57 इसी के बीच में होगा, 2.5 और 2.6 के बीच में। ओके सर, थोड़ा अब उसको हम लोग इनलार्ज करके देखेंगे। 2.5 2.6 तो अगल बगल हो गया, उसके बीच में होगा 2.57। ज़रा देखिए, अब हम एक नंबर लाइन में ये मान लीजिए 0 1 ये 2 है, ऐसा करते हैं, ये पूरा को अभी नहीं, 2.5 2.6 तो मिल चुका है ना, हम ये दोनों को लेते हैं थोड़ा डिस्टेंस में समझने के लिए। जैसे मान लीजिए ये है आपका 2.5 और ये है आपका 2.6, ऐसा इसको बड़ा करके दिखा रहे हैं। ये 2.5, उसके बगल में है 2.6। ठीक है, आपको क्या चाहिए? ये 2.57 इसी के बीच में होगा। ये बात समझ में आ रही है? चलिए, ये 2.5 से 2.6 जो भी पोर्शन है, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 10 इक्वल पार्ट में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया 10। इन दिस वे 2.5 to 2.6 will be divided into 10 पार्ट। ठीक है, तो 10 पार्ट जब डिवाइड कर दिए, ये होगा आपका 2.51। समझ गए? ये कितना होगा? 2.52, 2.53, 2.54, 2.55 हो जाएगा। ये होगा 2.55, ये 2.56, what will be this? 2.57. In this way we can represent 2.57 on the number line. ठीक है, आगे वाला हो जाएगा 2.58, फिर 2.59, फिर 2.6 हो जाएगा। ठीक, तो in this way we can represent 2.57 on the number line. अब मान लीजिए इसमें तो नहीं है, ये रहता 2.573, इसको रिप्रेजेंट रहता, तो आप क्या करते हैं? एक डिजिट और, ये लेट मी रफ, देखिए
आपको रिप्रेजेंट करना है सपोज 2.573। ओबियसली ये 2.57 से बड़ा होगा और ये 2.58 से छोटा होगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो ये 2.57 और 2.58, ये जैसे 2.57 हुआ, उसके बाद वाला पॉइंट जो होगा 2.58 होगा। तो नंबर लाइन में हम लोग ये दिखा सकते हैं कि ये है 2.57 और सपोज कर लीजिए ये है 2.58। ये तो हम लोग कर सकते हैं। अब इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट 2.573 वी डिवाइड 2.57 to 2.58 into 10 equal part. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2.57 है, ये 2.571, 2.572, 2.573, ये हो जाएगा 2.573, ये हो जाएगा 2.574, ये 2.575, इस तरह से। तो वी वांट 2.573। तो इस तरह से अगर और एक डिजिट भी होता तो उसको हम लोग नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते थे। ओके, तो इन दिस वे वी कैन रिप्रेजेंट दिस रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। एक और चीज़ आप समझ लीजिए, हाँ, मान लीजिए आपको ऐसा रिप्रेजेंट करना है 1.27 रैकरिंग ऑन द नंबर लाइन। तो क्या कीजिएगा, ये जो 1.27 रैकरिंग है ना, ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। इट मीन्स इट इज 1.27 27 27 एंड सो ऑन, इट विल कंटिन्यू, देयर इज नो एंड। तो इसमें कैसे रिप्रेजेंट कीजिएगा, डेसिमल के बाद कितना डिजिट आपको लेना है पता नहीं, 2 डिजिट 3 डिजिट। तो इसमें एक अप्रॉक्स लिखा रहेगा क्वेश्चन में कि रिप्रेजेंट 1.27 रैकरिंग अप टू 3 डिजिट और अप टू 4 डिजिट ऑफ डेसिमल। डेसिमल के बाद या तो 3 डिजिट तक 4 डिजिट तक आपको, जैसे 3 डिजिट आपको लेना है तो 1.272 तक इसको रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन में। ये तो 3 डिजिट का किए ना, वैसे ही होगा। 4 डिजिट तक बोलेगा तो 1 डिजिट और बढ़ाइएगा। तो इन दिस वे ये रैकरिंग वाला भी अगर है तो उसको भी हम लोग नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें लिखा रहेगा कि डेसिमल के बाद कितना डिजिट तक आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड हाउ टू रिप्रेजेंट √2, √3, √5 and these are irrational number or these are rational numbers. Okay, next is to represent √x on the number line as well as √9.2 on the number line। फिर ये 2 रैशनल और 2 irrational लिखना है 5/7 और 9/11 के बीच में। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा चला है, इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। ये दोनों को क्वेश्चन आप नोट करके रखिए। वी रिप्रेजेंट इन पार्ट 3। ठीक है, तो देखिए ये एक एक वीडियो डेली बनाते हैं। जैसे आज पार्ट 2 बनाए तो कल पार्ट 3 बनाएंगे, फिर पार्ट 4 बनाएंगे। तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा। इसको सब्सक्राइब करके आप रख लीजिएगा और लिंक जो हम भेज देते हैं, लिंक को आप सेव करके रख लीजिएगा। जो भी वीडियोज़ बनाएंगे वो लिंक में चला जाएगा और आप सब्सक्राइब करके रखिएगा तो आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा कि ये नंबर सिस्टम क्लास 9 मैथमेटिक्स का ये नया वीडियो आ गया, तो फिर उसको आप देखिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये दोनों क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नाउ नेक्स्ट यू मस्ट सी पार्ट 3।